students, and welcome to Secretarial Practice Lecture Series. In today's class, students, we will be starting with borrowed capital. Yes, we are studying chapter number 2 of your 12th curriculum. Chapter number 2 means sources of corporate finance. That means various sources through which money can be brought into the business, right? Sources of corporate finance को हमने starting में ही two broad categories में divide किया था. One is owned capital sources, the other is borrowed capital sources. याद आ रहा है? Owned capital in which the giver of the money, the person who is giving money to the company, gets ownership rights in exchange. Example, याद है formula SR, shares and reserves or retained earnings, right? Borrowed capital means that capital जिसमें कंपनी पैसा किसी से borrow कर रही है, उधार ले रही है, इसमें कंपनी ओनरशिप राइट्स नहीं देती है. सो इसके एग्जांपल्स, एक फॉर्मूला था, याद आ रहा है, D P L L B. So these are various sources of borrowed capital: debentures, public deposits, loan from banks, loan from financial institutions, and B stands for bonds. So previous classes, students, we are done with various sources of owned capital. From today we will be starting with sources of borrowed capital. So let's focus today on the first source of borrowed capital, that is debenture. So let's move on to the first source, that is debenture. As you all can see on the board, I have written a word debenture. Now, this is not a common word, यानी हम ये normal life में ये word use नहीं करते हैं. ये word use होता है investment scenario में. यहाँ पर debenture क्या है? Debenture is derived, the word debenture, it is derived from a Latin word, एक Latin word deber से derive हुआ है. The word debenture is derived from a Latin word deber. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है to owe something to someone. I repeat, the word debenture is derived from the Latin word deber, which means to owe something to someone. अब owe का मतलब होता है कि किसी को किसी का एहसान चुकता करना है. I owe you 10 chocolates, क्योंकि आपने मुझे कोई किसी टाइम पर हेल्प की, तो मैं आपको 10 चॉकलेट्स ओ करती हूँ, यानी मेरा आपका एहसान मेरे ऊपर है. यहाँ पर कौन किसका एहसान ले रहा है ये हम समझते हैं. We all know company is always in need of money. Why the company is in need of money? Because company has plans of expansion, company has opportunities, avenues of growth. So company के पास में मौके हैं पैसे को बढ़ाने के, तो कंपनी हमेशा पैसे की ताक में रहती है. कंपनी has explored various sources of owned capital, shares and all issue किया, but कंपनी चाहती है कि अब shares issue करने पर कंपनी का जो कंट्रोल होता है, कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होता है. डाइल्यूट का मतलब होता है जो कंट्रोल कंपनी के अकेले के हाथ में था, शेयर्स के आने पर वो कंट्रोल धीरे धीरे डिवाइड होता है amongst the shareholders. Now, company needs money, but
the company does not want to dilute its ownership. That means company has to go for borrowed sources of capital. Borrowed sources of capital means the company is borrowing money. Company is borrowing money from someone. Borrowed sources अगर मैं broader level पे बात करूं तो company is borrowing money from someone. जब भी हम किसी से class listen, जब भी हम किसी से money borrow करते हैं, borrow करने का मतलब होता है उधार लेना. जब भी हम में हम कंपनी हो सकती है, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने होम के लिए भी लोन लेते हैं, आप अपने घर के लिए बैंक से पैसा बोरो करते हैं. सो व्हेनेवर अ टर्म बोरो इज इन्वॉल्व्ड, three things has to be very clear. What are the three things? आप नंबर 1 कितना अमाउंट बोरो कर रहे हैं, how much amount you are borrowing, right? Number 2, आप जो अमाउंट बोरो कर रहे हैं वो आप कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं. So for how much period or for how much tenure? For how much period or for how much tenure you are borrowing the money, right? Here the company is borrowing money. So the company is borrowing money. Question 1, कितना amount? Question 2, कितने टाइम के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट. अगर कंपनी किसी से पैसा बोरो कर रही है, उधार ले रही है, तो भैया जिस इंसान ने कंपनी को पैसा उधार दिया उसने क्या कंपनी को फ्री में पैसा यूज करने के लिए दिया या कुछ इंटरेस्ट, कुछ एक्सपेक्टेशंस से अपना पैसा यूज करने के लिए दिया, राइट? हम भी बैंक से पैसा उधार लेते हैं, कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए. तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग मनी ऑफ बैंक. I'm using money of bank for purchasing mobile phone. So when the bank is giving me money for usage, the bank charges something extra. The bank charges, correct, the word interest. So as I said, whenever I'll be using the word borrowing, whenever I'll be using the word borrowed capital, three things which should be there very clear is आप कितना पैसा उधार ले रहे हैं या कितना पैसा उधार दे रहे हैं. जरूरी नहीं है आप कंपनी हो, आप इन्वेस्टर भी हो सकते हो. तो आप पैसा उधार दे रहे हैं या पैसा उधार ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए देन लेन हो रहा है, और जो पैसे का देन लेन है उस पे कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी या जिसने पैसा दिया उसको कितना रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. सो वी से इट एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. मोर कॉमनली वी विल यूज द वर्ड ROI, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? सो अब हम इसी चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं. What are we learning? We are learning debenture. What is debenture? It is derived from a Latin word debere, which means to owe something to someone. Debenture is a type of a loan. Debenture is a type of a loan which is taken by the company. अब किससे लोन ले रही है? सो यहां पर कंपनी पब्लिक से लोन लेती है. इन डिबेंचर द पर्सन हु इज लेंडिंग मनी, द पर्सन फ्रॉम whom the company is borrowing money is not a bank or a financial institution.
It is a public, a common general public, people like you and me. हम कंपनी को लोन देंगे, हम कंपनी को उधार देंगे. So I repeat, debenture is a type of a loan. When I say loan, I means borrowed capital. So debenture is a type of a loan or a debt which is taken by the company from the general public, which is taken at certain specific or fixed terms and conditions. Which are the fixed terms? Fixed amount is taken, for a fixed period it is taken, and at which fixed return will be paid by the company. For example, public, Mr. X is giving loan to the company. Let's give the name to a company. For example, Reliance. So Mr. X is giving loan or debt capital to the company. What is the amount of debt capital which Mr. X is giving? यानी इन तीनों चीजों के सवाल निकालने हैं. Mr. X ने 5 लाख रुपए 10 साल के लिए रिलायंस कंपनी को दिए. इस 10 साल के लिए कंपनी, रिलायंस कंपनी मिस्टर एक्स को 10% पर एनम के हिसाब से, I repeat, Mr. X is giving 5 lakh rupees to Reliance company for how much period? For 10 years, at which Mr. X will get from Reliance company rate of interest at 10% per annum. That means per year. मतलब अब इसको हम एक बार डायग्रामेटिकली समझ के देखें. तो चलो डायग्रामेटिकली समझते हैं. 2010, 2020 डन. 2010 में मिस्टर एक्स ने कंपनी को 5 लाख दिए. कितने साल के लिए दिए? For 10 years. So यहाँ से यहाँ हो गए 10 years class. Done. So 2010 to 2020, 10 years कंपनी इसका पैसा यूज करेगी. किसका पैसा? मिस्टर एक्स का पैसा. कितना पैसा? 5 लाख रुपए. That means क्योंकि ये बोरोड पैसा था तो मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी यानी कि 2020 यानी कि 10 साल के बाद ये जो 5 लाख रुपए कंपनी ने लिया था 2010 में, कंपनी ये 5 लाख रुपए मिस्टर एक्स को वापस रिटर्न कर देगी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट. सी द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल. इट्स PRINCIPAL, PLE नहीं. ठीक है. सो 5 लाख द प्रिंसिपल अमाउंट जो कंपनी को दिया. कंपनी ने 10 साल यूज किया. 10 साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी ने मिस्टर एक्स को वापस दिया. जैसे ही कंपनी ने 5 लाख रुपए वापस दिए, कंपनी का और मिस्टर एक्स का जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशन है, वो खत्म. डन. बट क्या मिस्टर एक्स ने कंपनी को ये पैसा फ्री में यूज करने के लिए दिया? तो आजकल तो रिश्तेदार ही रिश्तेदार को फ्री में पैसा नहीं देता. ये तो फिर पब्लिक है, इन्वेस्टर है. सो मिस्टर एक्स इज लायबल, listen the word, Mr. X is liable to get return from company every year at 10%. That means 2010, 2011 कंपनी कितना देगी? 10% ऑफ 5 लाख रुपीस. 10% ऑफ 5 लाख रुपीस कंपनी इंटरेस्ट देगी. क्या देगी? इंटरेस्ट. प्रिंसिपल नहीं दे रही है, पैसा यूज करने
5 लाख हुआ into 10%, that means 1 2 3 4 1 2 3 4 वो 50,000 रुपीज, नॉट बैड है ना। 10% यानी पहले साल में ही 5 लाख के पीछे इसको हो गया है 50,000 का फायदा। सेम 2012 50,000, 2013 ऐसे करते 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 टोटल 10 इयर्स तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल की एक्सपायरी पे आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। सो लेट्स revise the definition of debentures. Again, it's there on the board. Debenture is derived from a Latin word debere, which means to owe something to someone. Full stop. Debenture is a type of debt which is taken by the company from the public at certain specific terms and conditions. What are the terms? Specific amount, specific tenure or maturity and specific rate of interest. Done. अब ये समझ गया। अब कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। याद करो जब हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, जब आप पब्लिक थे और आपने कंपनी को शेयर्स के लिए पैसा दिया, तो बदले में आपको कंपनी ने एक एविडेंस दिया, एक प्रूफ दिया ओनरशिप का, वो था शेयर सर्टिफिकेट, राइट। अब यहाँ पर ओनरशिप तो नहीं मिल रही है इन डिबेंचर्स, सिंस द पब्लिक, चलो मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, इन डिबेंचर्स सिंस द पब्लिक इज गिविंग लोन, सिंस द पब्लिक इज गिविंग लोन and the public will take the money back, plus public हर साल फिक्स रिटर्न ले रही है, तो ये पब्लिक को वोटिंग राइट से कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी, ये पब्लिक बोलती है कि मेरे को ओनरशिप राइट नहीं चाहिए, मेरे को फिक्स रिटर्न चाहिए और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर वापस कर दो, उतना ही बहुत है, राइट। सो क्लास इन बोरोड कैपिटल the lenders, the people who lend money does not get voting rights. I am writing here voting rights इनको नहीं रहता है। इसीलिए पब्लिक जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, राइट, पब्लिक जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। उन्होंने कंपनी को क्रेडिट दिया, क्या दिया? क्रेडिट दिया। तो हम इनको कहते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। सो इफ यू रिमेंबर, शेयर्स में हमने शेयर होल्डर को क्या स्टेटस दिया था? ओनर का। Remember, we told that they are the owners of the company, they are the members of the company. Why? Because they were having the right to vote, right? So यहाँ पर क्योंकि ये पब्लिक ने उधार दिया है, क्रेडिट दिया है, ये पब्लिक ने ओनरशिप राइट्स नहीं चाहिए, so the status which the debenture holders get is of creditors and not owners. This is very important word. अब और स्पेसिफिक अगर मुझे होना है तो ये जो जनरल पब्लिक है जो कंपनी को पैसा दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो हम इनको कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। क्या कहेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। जिसने शेयर के पैर में पैसा दिया, शेयर होल्डर्स। जिसने डिबेंचर के तौर पे पैसा दिया, डिबेंचर होल्डर्स। समझ में आया? सो डिबेंचर होल्डर्स, they are the creditors of the company. Since they are not getting voting rights, they don't have any right to say in the company, no right to participate in the management, no right to participate in the decisions of the company. ठीक है? I was talking about an evidence or proof. When you invested in shares,
If someone asks me, are you a shareholder? I say, yes, Baba, I am a proud shareholder of Reliance company. So the person asks me, what is the proof? So what do I show? My share certificate, है ना? या अभी डीमैट फॉर्म में I show the डीमैट अकाउंट में my account balance, ये रिलायंस के इतने शेयर्स. That means if you are giving something, अब जैसे आप कॉलेज में फी पे करते हैं, right? You pay fee in the college. You get a proof that you have paid fee. You get a receipt. Similarly, when a debenture holder, when a public invests in the company, invest का मतलब यहाँ है when the debenture holder provides loan to the company, provides 5 lakh for 10 years, in which he is liable to get 10%. तो ये इसका proof क्या है? भैया कहाँ लिखा है? तो जब भी आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो, यू गेट एन एविडेंस, यू गेट एन एक्नॉलेजमेंट. रिमेंबर द वर्ड, व्हाट एम आई यूजिंग? यू गेट एन एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट यानी अग्री करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे यानी कंपनी को इस इंसान से 5 लाख मिला है जो मैं 10 साल के बाद रिटर्न करूंगी, जिसपे मैं हर साल 10% पे करूंगी. सो डिबेंचर सर्टिफिकेट. What is a debenture certificate? The thing which I just now talked about. Debenture certificate, it's an acknowledgement of debt which the company has received from the debenture holder. In this, how does the debenture certificate looks like? I will show at the end of my video. But then remember, the contents of debenture certificate will tell the debenture holder everything about the debenture. कि भैया कंपनी का नाम क्या है, किसने पैसा दिया है, मिस्टर एक्स ने कितना पैसा दिया है, 10 लाख, कितने साल, 5 lakhs, कितने साल के लिए दिया है, 10 years, इस पे कितना रिटर्न हम देंगे, 10% पर एनम. फिर कंपनी का सील होगा, सिग्नेचर्स होंगे एंड डेट ऑफ इशू होगा. क्लियर है सभी को? सो क्लास, ऑन द बोर्ड आई हैव गिवन यू अ इंट्रोडक्शन अबाउट what is a debenture, from where is the word derived, what does the word mean, who takes debt from whom, on what terms and conditions, right? What is the status which the debenture holders enjoy? Why do they enjoy this status and not of members? Because उनके पास voting rights नहीं है. And what proof, what evidence does the company gives that yes, I have taken money from this person, right? अब डिबेंचर के कुछ फीचर्स हैं, कुछ पार्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम वन बाय वन करके देख लेंगे. Done? In the exams or from the exam point of view, the question which is generally asked is what is a debenture and state the features of debentures, right? किसी भी चीज को समझने के लिए हम उसके बारे में समझते हैं, उसके फीचर्स, उसके नैन नक्श कैसे हैं, हम ये समझते हैं. सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स वन बाय वन. व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, वहां से काफी सारी चीजें आप खुद ब खुद यहाँ लिख पाओगे. तो पहले हमें जो आता है हम वो फटाफट गैप्स फिल करते हैं, राइट? Talking about promise, we all have seen that whenever a company takes debt or loan from the public debenture holder, the company gives an assurance, a promise, an acknowledgement that yes, I am going to repay the amount. So यहाँ पर 2 promise दिए जाते हैं. एक promise होता है that आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट टाइम पर होगा, यानी जब मैच्योरिटी खत्म होगी, और दूसरा आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइमली मिलेगा. कंपनी ने जैसे जैसे
डिसाइड किया है और जो कन्वे किया है, कम्युनिकेट किया है कि अगर मैं साल में इंटरेस्ट दूंगी तो साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि मैं मंथली दूंगी, हाफ ईयरली दूंगी, क्वार्टरली दूंगी, सो व्हाटएवर इज बीइंग डिसाइडेड, व्हाटएवर इज बीइंग प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी, दैट मींस टू प्रॉमिसेस, वन इज प्रिंसिपल का रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी एंड अनदर इज इंटरेस्ट का पेमेंट विच इज टू बी डन टाइमली। हम वर्ड डाल देंगे टाइमली, ठीक है। सो ये प्रॉमिस कंपनी करती है, द कंपनी प्रॉमिसेस द डिबेंचर होल्डर्स दैट आई विल कीप दीज टू प्रॉमिसेस, राइट। अगर ये प्रॉमिस नहीं रखती है तो क्या होगा वो हम देखते हैं, बट फिलहाल इतना याद रखो कि डिबेंचर्स में ये प्रॉमिस कंपनी करती है। अब लेट्स टॉक अबाउट द फेस वैल्यू। Remember the face value, the value which is written on the face of the share. Certificate पे जो लिखा था, यहाँ पर face value is the value which is written on the debenture certificate, on the face of the debenture. जिस face value पर कंपनी debentures सोचती है कि मेरा एक डिबेंचर, एक सर्टिफिकेट अगर मैं देती हूँ तो इसके बदले में मैं पब्लिक से इतना पैसा उठाऊंगी, राइट। अब इशू करते वक्त कंपनी फेस वैल्यू पर भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पर। जैसे हमने शेयर्स पे देखा था कि 10 का शेयर 10 में बिका पार, 10 का शेयर 20 में बिका प्रीमियम, 10 का शेयर 8 में बिका डिस्काउंट। सो सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू डिबेंचर्स ऑल्सो। सो वो हो गया इशू किस पे करते हैं, बट यहाँ फेस वैल्यू मीन्स, तो यहाँ पर फेस वैल्यू जो वैल्यू जनरली डिबेंचर सर्टिफिकेट पर मेंशन्ड होती है, डिबेंचर्स आर ऑफ हाई डिनोमिनेशन एज कंपेयर टू शेयर्स। शेयर्स हमारे सस्ते होते हैं, डिबेंचर्स हाई डिनोमिनेशन के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is one debenture of the company. For example, this is one debenture of the company and इसका value है 1000 rupees, right? So company will say to the public that I am issuing, हम यहाँ लिखते हैं एक डिबेंचर कितने का है, 1000 rupees का। तो कंपनी टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स मान लो 1 लाख इशू कर रही है टोटल, कंपनी इज इशूइंग टोटल डिबेंचर्स 1 लाख रुपीस। सो कंपनी जब पब्लिक को बोलती है कि मैं 1 लाख डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, एक डिबेंचर का वैल्यू है 1000 रुपीस, ये मैं 10 इयर्स के लिए इशू कर रही हूँ जिसपे आपको 10% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा, ठीक है। अब ये एक डिबेंचर है, अब मैं परवीन, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि अगर एक डिबेंचर कितने का है, 1000 रुपीस का, तो मैं इस कंपनी के 10 डिबेंचर्स खरीदना चाहती हूँ। सो अगर एक डिबेंचर 1000 का है, सो परवीन वांट्स टू परचेज 10 डिबेंचर्स। सो कितना इन्वेस्टमेंट होगा परवीन का, 10,000। दैट मीन्स परवीन ने इस कंपनी में कितना लोन दिया है, 10,000 रुपीज। समझ में आया? सो ये जो फेस वैल्यू होती है वो जनरली डिनोमिनेशंस जो है वो थोड़े हाई होते हैं एंड इनके जो डिनोमिनेशंस है दोज आर जनरली इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 100 और सो, यानी 100, 200, 300, 500 इस तरीके से डिनोमिनेशन बढ़ते हैं, ना कि रुपीज में 102, 103, 104 इस तरीके से नहीं। क्लियर है सभी को? राइट। सो हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आर जनरली ऑफ हाई डिनोमिनेशन, it is generally of high denomination, that is in multiples of rupees 100 or so, ठीक है। कमिंग टू फीचर नंबर 3, फटाफट हम देखेंगे टाइम ऑफ रीपेमेंट। किस टाइम पर आप
प्रिंसिपल वापस करेंगे। रीपेमेंट का मतलब है एट व्हाट टाइम यू आर रिटर्निंग द प्रिंसिपल बैक। आप कब पैसा वापस कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। सो किस टाइम पर आप वापस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इशू के टाइम बताया जाता है। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ इशू टू द डिबेंचर होल्डर। It is also mentioned in the debenture certificate, right? Point number 4, priority of repayment. Priority of repayment का मतलब है जब मेच्योरिटी आ जाती है, जो हमने एग्जाम्पल देखा 2010 में लिया, 2020 में पैसा वापस करना है। अब 2020 में कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स हैं वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब है कम है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो अगर कंपनी को लेनदार जिससे पैसा लिया है उनको पैसा देना है और उनकी लाइन लगानी है, तो उस लाइन में सबसे पहले आएंगे डिबेंचर होल्डर्स, फिर आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और अगर पैसा बच गया तो आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ में आया? सो प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट मींस एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। व्हाट इज रीपेमेंट? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। जो आपने मूल अमाउंट लिया वो आपको जब वापस करना है मैच्योरिटी पर, सो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू डिबेंचर होल्डर्स फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज borrowed capital, and to repay to borrowed capital should be your first priority. Done. So priority of repayment में you will write down debenture holders have priority in repayment of debenture capital over other claimants of the company. Other claimants means अगर preference share भी वहाँ claim करने के लिए है तो पहले पेट किसका भरा जाएगा? डिबेंचर होल्डर का, फिर पैसा बच जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर अगर बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। सो दे हैव प्रायोरिटी ओवर अदर क्लेमेंट्स। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। पहले अब इंटरेस्ट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। वी ऑल नो दैट कंपनी प्रॉमिसेस to pay interest to the debenture holders. How is this interest payment to be done? As decided, but it is to be done on timely manner. अगर साल के बाद इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है तो साल के बाद दो, 6 महीने के बाद डिसाइड हुआ है तो 6 महीने के बाद दो, but however it is decided, the company has to pay interest to the debenture holders timely as promised. Right? Now let's talk about assurance of repayment. Assurance का मतलब है क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। मैंने अभी बताया फर्स्ट पॉइंट में कि कंपनी प्रॉमिस करती है that okay I'm going to give you a money back after 10 years. I'm going to give you principal every year. This is a promise, but it's not important or it's not necessary that everybody keeps the promise. So you need a guarantee, है ना? आपको एक गारंटी लगती है, तो इसको हम कहते हैं assurance of repayment. Debentures are medium to long term debts. 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप उस पर 20 साल के लिए नजर तो नहीं रख सकते। It's practically impossible to keep an eye on a person to whom you have given money 24/7. 1-2-3 साल के लिए पैसा दिया या 1-2-3 महीने के लिए दिया अलग बात है, बट इफ यू से दैट गिव मनी टू अ कंपनी फॉर 20 years एंड यू विल गेट योर मनी बैक आफ्टर 20 years, तो ये सब ट्रस्ट पर काम करता है। बट ट्रस्ट बिना लॉजिक के कहीं स्टैंड नहीं करता, तो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई होता है कि कंपनी प्रॉमिसेस टू पे प्रिंसिपल, दैट इज टाइमली रीपेमेंट। Company promises to pay interest, that is timely interest payment, but company gives an assurance
what is the assurance, what is the guarantee that the company will be giving money? So class, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम जाते हैं हमारे पुलिस स्टेशन के पास, करेक्ट? हमें पता है कि हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसका सैटिस्फैक्टरी सोल्यूशन हमें उस लोकल पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा, राइट? आप कुछ गलत करते हैं तो हम आपके पेरेंट्स का दरवाजा खटखटाते हैं जस्ट बिकॉज आपको किसी का डर है, राइट? सिमिलरली कंपनीज अगर इतना कुछ करती है, कंपनीज आर टेकिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, सो ये जंगल राज नहीं है, यहाँ पर भी किसी का कंट्रोल है। एंड हु इज कंट्रोलिंग इट? सेबी एंड कंपनीज एक्ट। ये मिलकर कंपनीज पर एक स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखते हैं, एक स्ट्रिक्ट पॉइंट, एक स्ट्रिक्ट नजरिया रखते हैं, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होते हैं कि आप धोखा करोगे, इंसान धोखा एक ही बार कर सकता है, दोबारा उसे धोखा करने का मौका नहीं मिलता है, राइट? सो अगर आप बदमाशी करोगे, आप लोगों को पैसा टाइम पर नहीं दोगे, तो आपको तो लीगल चक्कर में कंपनी फंसाएगी, सेबी फंसाएगा ही फंसाएगा। बट ये याद रखो कि आपने एक बार धोखा किया तो आपको दोबारा कभी पैसा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको पूरे सिक्योरिटीज मार्केट यानी पूरे स्टॉक एक्सचेंज से बैन कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर ले लो पैसे शेयर्स में, फिर ले लो पैसे डिबेंचर्स में, आपको नहीं मिलेगा, राइट? सो यहाँ पर अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट सेबी और कंपनीज एक्ट करवाती है कंपनी से, वो सेबी अश्योरेंस नहीं देता। अश्योरेंस कौन दे रहा है? कंपनी ही देती है। बट देन वी नो हु इज कीपिंग अ गन पॉइंट ऑन द कंपनीज हेड दैट यू हैव टू गिव देम ऑन time, you have to give the principal on time, you have to repay on time. Who keeps a gun point? We know SEBI and Companies Act keeps a gun point. To make the thing more assured, SEBI has added a character or a feature. Let's see feature number 12, that is security. Debentures can be or cannot be secured. I repeat, debentures can be or cannot be secured. Now, what is the meaning of secured? Secured का मतलब है कि अगर कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया, कंपनी ने आपको अश्योरेंस दिया, फिर भी कंपनी आपको टाइम पर आपका प्रिंसिपल नहीं दे रही है, the company is not able to repay you your principal on time, definitely आप नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, दैट मीन्स अ कोर्ट ऑफ द कंपनीज। आप वहां कंप्लेन करेंगे, कंपनी को नोटिसेस आएंगे, बट फिर भी नोटिसेस के बाद भी कंपनी के कान पर जू नहीं रेंग रही है, कंपनी इज नॉट willing to give you your principal amount back, then if the debentures are secured, then the court will give instructions to official liquidators to liquidate your company. That means your assets, आपके कंपनी के जो असेट्स हैं उन पे चार्ज किया जाएगा, धावा बोला जाएगा। योर असेट्स कैन बी चार्ज्ड, योर असेट्स विल बी टेकन इनटू कस्टडी ऑफ द लिक्विडेटर, योर असेट्स विल बी सोल्ड ऑफ, और वो असेट्स बेचकर जो पैसा आएगा उससे डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट किया जाएगा। क्लियर क्लास? मैं फिर बता रही हूं कि कंपनीज को धोखा करना इज नॉट इजी। इट्स नॉट अ गेम वे कंपनीज कैन प्ले एनीथिंग विद द पब्लिक। सेबी का पहला मोटिव, मैं बार बार ये चीज बोलती हूं, द फर्स्ट एम, द फर्स्ट मोटिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट
द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तुम किंग हो इन्वेस्टर, तुम इस मार्केट के किंग हो। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये हम जो पढ़ रहे हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये किसको बेचेंगे? कंपनी पैसा कहां से लाएगी? तो भैया तुम्हारा फेथ, तुम्हारा ट्रस्ट इस मार्केट में रखना बहुत जरूरी है। सो ये पूरा फेथ, ये पूरा ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी है सेबी और कंपनीज एक्ट की। सो दे विल टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू कीप योर फेथ, to keep your trust and to assure that principal and interest payment is done on time where it is guaranteed. Equity shares में गारंटी नहीं था तो आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां आपको गारंटी नहीं किया गया था। हाँ, प्रेफरेंस शेयर में गारंटीड है तो मिलना चाहिए, डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट गारंटीड है तो मिलना चाहिए। दैट मीन्स assurance of repayment is taken care of. How it is taken care of? By creating charge on the assets of the company. जितना डिबेंचर अमाउंट, जितना लोन, जितना डेट, जितना पैसा आप डिबेंचर के तौर पर लोगों से बोरो कर रहे हो, उतने अमाउंट की सिक्योरिटी। सपोज आपने 10 लाख उधार लिया है तो कंपनी को 10 लाख के अमाउंट की कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी एज मॉर्गेज, एज अ सिक्योरिटी। किसके पास रखनी है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन यू द पॉइंट सिक्योरिटी, वेयर रिमेंबर दैट डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और डिबेंचर्स कैन बी unsecured. If they are secured, against what they are secured? The answer is against the assets of the company. ठीक है? So we are done with this side. Let's move on to this side. Status of debenture holder. हम सबको पता है कि debenture holder are creditors of the company and not owners because they are not getting correct voting rights नहीं है। Let's move on to first point number 9. क्या डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स है? तो द आंसर इज नो। सो डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। व्हाई दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स? बिकॉज दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉट ओनर्स। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 8, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी कौन है? भैया अब मुझे पैसा चाहिए, मैं हूं कंपनी, मुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये सब डिसीजन तो कंपनी का लोग ही लेगा, राइट। इंटरनल डिसीजंस है तो कंपनी के लोग लेंगे। मैं ही डिसाइड करूंगी कि मुझे कितना डिबेंचर कितने टाइम के लिए चाहिए। दैट मीन्स अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू इशू डिबेंचर्स, राइट। पॉइंट नंबर 10, इशुअर्स। कौन सी कंपनीज, किस टाइप की कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती है? इशू करने का मतलब है किस टाइप की कंपनीज पब्लिक से डिबेंचर के तौर पर पैसा ले सकती है? तो आंसर है डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड companies. So debentures can be issued by both private and public limited companies. Yes, certain amount restrictions होते हैं कि public limited इतना, private limited इतना, हमें वो अभी समझने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इशूअर डिबेंचर कौन कौन इशू कर सकता है। तो डिबेंचर प्राइवेट पब्लिक दोनों इशू कर सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान से याद रखो, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं इसका रेफरेंस जरूर पूछूंगी आपको। अब पॉइंट नंबर 11, लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है कि डिबेंचर्स इशू होते हैं यानी बिकते हैं। तो सवाल है कि ये जो डिबेंचर है ये कौन से बाजार में बिकेगा,
क्या मैं सदर बाजार, क्या मैं बर्डी के बाजार में, क्या मैं धर्मपेट में जाकर इसको खरीद सकती हूँ क्या? तो आंसर है नो। डिबेंचर एक सिक्योरिटी है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसे खरीदने के लिए भी एक सेपरेट यूनिक मार्केट है, एक बाजार है। अब उस बाजार को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा घुस नहीं सकता। अब ये ऐरा गैरा कंपनी भी हो सकती है, ये ऐरा गैरा इन्वेस्टर भी हो सकता है, राइट? तो सेबी और कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, इफ द कंपनी वांट्स टू टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक in any form, the company has to list itself. List का मतलब है register itself on any recognized stock exchange. Give me two stock exchanges, big stock exchanges, name of India, NSE and BSE, correct? So what is the rule? The rule says, who gave the rule? SEBI and Companies Act. What is the rule? Rule says any company who wants to take money from the public, who wants to invite public for investing in my company, I have to go to that particular market. जैसे फ्रूट मार्केट में बिकता है, वेजिटेबल मार्केट में बिकता है, वैसे सिक्योरिटीज मार्केट में ही बिकेगी, कहीं भी रोड पर ठेले पर नहीं बिकेगी। तो वो मार्केट में आपको घुसने के लिए, अब जैसे मॉल्स है, सेंट्रल मॉल हो गया, ट्रिलियम मॉल हो गया, ग्लोबल मॉल हो गया, तो अगर आपको इस मॉल में घुसना है तो आपको इस मॉल में जगह लेनी पड़ेगी, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको डिबेंचर्स बेचना है, इस मार्केट में घुसना है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, लिस्ट करना होगा ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज। क्लास, लिस्टिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज itself is a very big task. It is very difficult. Lot of legalities. We are going to see this in our chapter Stock Exchange. But as of now, remember that SEBI listing compulsory करती है। Listing का मतलब है registration compulsory करती है, और इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो कंपनी इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वो कंपनी का बैकग्राउंड सेबी ने वेरीफाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी धोखेबाज है और वो कंपनी को मैंने वेरीफाई नहीं किया, मैं कौन हूँ? सेबी। अगर वो कंपनी धोखेबाज है एंड इफ आई हैव नॉट वेरीफाइड, दैट मीन्स मेरा जो मोटिव है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मैं उस पर खरी नहीं उतर पाऊंगी। So if I am allowing, if I am SEBI, if SEBI is allowing anyone to take money from the public, that means SEBI is allowing that company to get listed on stock exchange. That means SEBI has verified each and every aspect of that company. And then आप assured रह सकते हो कि yes, अब मेरे साथ धोखा होने की चांसेस कम है, ना के बराबर है, नहीं है, राइट? अब पॉइंट नंबर 12 वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम चेक करना है कि आप जिस कंपनी को डिबेंचर के तौर पर पैसा दे रहे हैं, वो सिक्योर्ड डिबेंचर बेच रही है या अनसिक्योर्ड बेच रही है। देन पॉइंट नंबर 13 टॉक्स अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी। What is transferability? The ability to get transferred. So debentures can be transferred from one person to another. जैसे हम shares transfer करते हैं from one shareholder to another shareholder, but we have to follow a process.
which is laid down in the Articles of Association. Similarly, debentures can also be transferred from one person to another, but you have to follow that specific process, right? So transferability means debentures can be easily transferred through instrument of transfer. What is instrument of transfer? We'll see chapter number 3. अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि debentures can be transferred from one person to another. कैसे ट्रांसफर करना है, कंपनी का एक प्रोसेस है, वो फॉलो कर ही आपको ट्रांसफर करना है. मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, which is a very important point, that is parties to डिबेंचर. डिबेंचर्स इशू करने के लिए या डिबेंचर्स को इशू करते वक्त कुछ पार्टीज हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, कुछ पार्टीज हैं. पार्टी यानी पार्टी हो रही वाली पार्टी नहीं. पार्टी मीन्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इन्वॉल्व्ड, राइट. सो कुछ पार्टीज हैं जो डिबेंचर को इशू करने के लिए काम करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. तो कौन सी है वो पार्टीज, दैट वी आर गोइंग टू सी. देयर आर 3 मेन पार्टीज which are involved. I'm going to write here. So there are 3 main parties which are involved in issue of debentures. Which are the 3 parties? Number 1, the issuer company, जो पैसा चाहता है, जो डिबेंचर इशू कर रहा है, राइट. नंबर 2, जो पैसा दे रहा है, दैट मीन्स द पब्लिक, और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से डिबेंचर होल्डर. अब मान के चलो कि रिलायंस कंपनी ने आपसे पैसा लिया, राइट, फॉर 10 years. अब कुछ भी आपको रिलायंस से रिलेटेड कुछ ग्रीवेंस है, आपको आपका इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो मैं रिलायंस के ऑफिस जाती हूँ मुंबई, है ना. जब मैं उसके ऑफिस जाती हूँ तो वो जो चौकीदार है, जो गार्ड है, वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देता है. मैं उसको चिल्ला चिल्ला कर बताती हूँ कि अरे यार, मैं कंपनी की डिबेंचर होल्डर हूँ, मैंने कंपनी को 5 लाख दिया है, वो गिनता भी नहीं है. एंड ही डजंट अलाउज मी टू एंटर द ऑफिस, ही डजंट अलाउज मी टू मीट टू मिस्टर अंबानी. इट्स वेरी ऑब्वियस, बिकॉज फॉर बिग कंपनीज which plays in crores, talking to each and every investor, talking to each and every person who has invested in the company is practically not possible. So in certain circumstance, I know कि SEBI is there to take care for me, but यार SEBI भी कहाँ बेचारा देखेगा. SEBI एक हेड तो है, he or she or SEBI, it is an head, राइट. तो बट सेबी भी कहाँ जाकर अपना नाम घुसाकर ध्यान देते रहेगा. तो सेबी क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा शेड ऑफ करता है. शेड ऑफ का मतलब होता है कि थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को पास ऑन करता है. डिबेंचर्स के केस में, इन द केस ऑफ डिबेंचर्स वेयर कंपनी इज वन पार्टी, डिबेंचर होल्डर is another party, it is very important because debenture is all about trust, it's all about promise, it's all about assurance, it's all about repayment, it's all about security. So ये सब छोटे छोटे मैटर्स हैं. सेबी अपने बिहाफ पर किसी को इस मैटर को टेक केयर करने के लिए कहता है. सेबी कहता है कि यार तुम इन दोनों के बीच में रहो और एक ट्रायंगल मेंटेन करके रहो. दैट मीन्स देयर इज वन पार्टी विच स्टेज इन बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर, जो दोनों एंगल्स को संभालता है और इन दोनों के ऊपर लगाम रखता है.
ना तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के साथ नाइंसाफी करे और ना ही डिबेंचर होल्डर्स कंपनी से किसी चीज पर झगड़ा करे। अब डिबेंचर होल्डर्स क्यों झगड़ा कर सकते हैं? होते हैं कई होशियार जो जाकर बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ कंपनी में, वैसा क्यों हुआ, तो भैया आपको वोटिंग राइट्स नहीं है, आप कंपनी के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज डिबेंचर होल्डर्स को किसी को याद करानी पड़ेगी। someone has to tell them what are your rights. Your right includes only two rights, repayment and interest. Your right does not include voting right. Your right does not include participation or interference in management. So who is that someone? Who is that someone which is appointed by the company but is approved by SEBI? This someone is called as debenture trustee. So who is the third party? Debenture trustee. This debenture trustee is there in between. You can see the diagram. This debenture trustee, as the name tells, keeps or maintains a trust between the company and the debenture holders. Who appoints debenture trustee? The company appoints debenture trustee. Number one question. Number two, when is the debenture trustee appointed? Whenever a company is issuing debentures to more than 500 people. I repeat, whenever a company is issuing debentures to more than 500 people, जब 500 से ज़्यादा लोगों से हम पैसा लेते हैं in the form of debentures, the company has to appoint debenture trustee. Number 3 question. Who can act as a debenture trustee? Debenture trustee जो नाम है, तो ये क्या इंसान है क्या कोई, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है? So debenture trustees are organizations which are registered and approved by SEBI, right? अब who can act as debenture trustee? तो ये organizations है। किस टाइप की organizations? These can be insurance companies, these can be private institutions, these can be scheduled banks. So ये सब इनके कुछ requirements होते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी फुलफिल करती है उसे डिबेंचर ट्रस्टी के काम के लिए अपने आप को अप्रूव करवाना पड़ता है सेबी से, राइट? अब अप्रूवल के बाद कंपनी चाहे तो एक लिस्ट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज होती है सेबी की वेबसाइट में। सो कंपनी किसी भी एक को डिबेंचर ट्रस्टी करके अपॉइंट कर सकती है। अपॉइंटमेंट का मतलब है दे टेक सर्टेन फीस फ्रॉम द कंपनी। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। सो डिबेंचर ट्रस्टीज चार्ज सर्टेन फी फ्रॉम द कंपनी फॉर व्हाट? Debenture trustees has been appointed to maintain trust between the company and the debenture holders. अब ये सब जो बातें हैं ये orally नहीं होती है ना? तो इसकी लिखा पढ़ी होती है। तो इन तीनों के बीच में जो एक अग्रीमेंट साइन होता है उसको हम कहते हैं ट्रस्ट डीड। डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट, राइट? सो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के ड्यूटीज लिखी होती है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर? द ड्यूटी इज टू गिव प्रिंसिपल ऑन टाइम, द ड्यूटी इज टू गिव इंटरेस्ट ऑन टाइम। और साथ ही में इस ट्रस्ट डीड में लिखा होता है the rights of debenture holder. Debenture holder के क्या rights है? They have right to ask for repayment, they have the right to ask for interest, but they have no right of voting. Got it? So debenture trustees, जैसे कि नाम है trustees, कल को डिबेंचर होल्डर को कंपनी से कोई भी ग्रीवेंसेस है,
कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो भैया मुझे अंबानी जी तो एंटरटेन नहीं करेंगे, तो मैं मेरा रोना किसके पास जाकर करूंगी? डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी के पास जाकर अपना रोना गाना करेगा। डिबेंचर ट्रस्टी ही कंपनी से बात कर डिबेंचर होल्डर के ग्रीवेंस को सॉल्व करेगा। अब याद करो, जब मैंने सिक्योरिटी की बात की थी तो मैंने कहा था डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट सर्टेन असेट्स ऑफ द कंपनी। वी टॉक एन एग्जांपल, जहां अगर 10 लाख के डिबेंचर्स का पैसा लिया है तो कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ 10 लाख ऑन सम असेट्स, यानी अपने वो 10 लाख के असेट्स किसी के पास गिरवी रखाने हैं। तो किसके पास गिरवी रखाने हैं? डिबेंचर ट्रस्टी के पास। डिबेंचर ट्रस्टी ही देखेगा कि कल को कंपनी टाइम पर रीपे कर रही है या नहीं कर रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी ही डिबेंचर होल्डर्स के साथ मिलकर कोर्ट में जाएगा और कंपनी के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करेगा। Clear class? So class, with this we end up with the topic of debenture and its features, a very important concept. This concept is taken ahead in chapter number 4 in more detail, but I really want you that आपको ये सारे राइट्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं, कॉपीज में लिखने हैं। That's all for the day. If you have any doubts, you can feel free to ask your doubts. Thank you.